Let us start reading the topic H.C. Verma, work power energy from H.C. Verma, page number 121, point number 8.6. चलो start करो बेटा. Let us consider the following two examples. Suppose a block of mass m rests on a rough horizontal table. It is dragged horizontally towards right through a distance L and then back to its initial position. हम्म. आगे. Let mu be the friction coefficient between the block and the table. आगे. Let us calculate the work done by the friction during the round trip. क्या बोला इन्होंने? The normal force between the table and the block is N is equal to mg. उन्होंने क्या बोला अभी यहाँ तक क्या बोला है? वो नॉर्मल फोर्स जो टेबल और ब्लॉक के बीच में वो N इज इक्वल टू mg है. और उसके पहले उन्होंने क्या किया है? वो ब्लॉक मास m को रेस्ट में रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है और उसे हॉरिजॉन्टली राइट साइड को ड्रैग किया हुआ है डिस्टेंस L से. राइट साइड में जाके फिर से लेफ्ट साइड में लेके आया बेटा उसको. आगे. And hence the force of friction is mu mg. When the block moves towards right, friction on it is towards the left and the work by friction is minus mu mgl. माइनस क्यों बेटा? माइनस मतलब वो फिर से पीछे लेके गया ना. नहीं, फ्रिक्शन अपोज करता है ना बेटा. हाँ. फ्रिक्शन अपोज करता है तो अगर हम उसको राइट में लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शन लेफ्ट में होगा. लेफ्ट में. हाँ. हाँ, आगे. When the block moves toward the left, friction on its right and the work is again minus mu mg. हाँ, अगर तुम उसको लेफ्ट में लेके गए तो फ्रिक्शन राइट में होगा तो फिर से वर्क डन जो होगा वो माइनस म्यू एमजीएल होगा. Hence the total work done by the force of friction in a round trip is minus 2 mu mgl. हाँ, तो राउंड ट्रिप पे टोटल वर्क कितना हुआ? दोनों केस में माइनस माइनस हुआ. हाँ. आगे. Suppose a block connected by a spring is kept on a rough table as shown in figure 8.8. The block is pulled aside and then released. It moves towards the center A and has some velocity v0 as it passes through the center. It goes to other side of A and then comes back. This क्या time किया है it उन्होंने? वो ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है और वो नीचे का सरफेस रफ है और वो ब्लॉक को पुल किया और फिर से उसको रिलीज कर दिया गया है और ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v0 दी है और वो जैसे अदर मतलब दूसरे साइड को ए ब्लॉक को लिया जाता है. बराबर. आगे. Compare these two cases in which the block is at A, once going towards the left and then towards right. In both the cases, the system table plus block plus spring has the same configuration. The spring has the same length. The block is at the same point on the table and the table of course is fixed to the ground. The kinetic energy in the second case is less than the kinetic energy in the first case. This loss in a kinetic energy is a real loss. Every time the block passes through the mean position A, the kinetic energy of a system is smaller and in due course the block stops on the table. We hold friction as a culprit because in the absence of friction the system regains in kinetic energy as it returned to the original configuration. Remember, work done by a friction in a round trip is negative and not zero.
Example 1 above. सुनो अभी अभी उन्होंने क्या किया है, एक ब्लॉक, ऊपर डायग्राम को देखो तुम, एक ब्लॉक को स्प्रिंग लगाई है और उसको एक रफ सरफेस पर रख दिया है और एक साइड में खींच के छोड़ दिया उसको। तो हर केस में क्या हो रहा है, वो ब्लॉक जब ए पॉइंट से गुजर रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये पूरे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम करने की कोशिश कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। यहाँ पर पूरा रिस्पॉन्सिबल फ्रिक्शन। बट हाँ, और वो फ्रिक्शन का एक राउंड ट्रिप में जो भी वर्क डन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ये पैराग्राफ में उनको उतना ही कहना है। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव, दूसरा काइनेटिक एनर्जी कौन कम करवा रहा है, फ्रिक्शन कम करवा रहा है। आगे। We divide the force in two categories, conservative and non-conservative forces. If the work done by force during a round trip of a system is always zero, the force is said to be conservative. Otherwise, it is non-conservative. राउंड ट्रिप में अगर वर्क डन जीरो हो रहा है, इसको अंडरलाइन करो। राउंड ट्रिप में अगर वर्क डन जीरो हो रहा है तो हम उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, और अगर राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं हो रहा है तो उसे हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जब एक बार घूम के आने के बाद अगर वर्क डन जीरो हो रहा है तो हम उस फोर्स को कंजर्वेटिव कहेंगे, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव कहेंगे। आगे। If the work done by force depends only on the initial and the final state and not on the path taken, it is called conservative forces. मतलब Thus, the force of gravity, Coulomb force, and the force of a spring are conservative force, as the work done by these forces are zero in the round trip. हाँ, एक मिनट, यहाँ ये चीज कौन एक्सप्लेन करेगा, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा ये इतने वर्ड्स को? यस अथर्व। यस सर। हाँ बोल बेटा। सर वो बोलना चाहते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है हम्म उस उस पे ही कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड होता है, ना कि कौन से पाथ से वो फाइनल पोजीशन तक गया, वो पाथ डिपेंड नहीं करता सर। कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क? वर्क डन। फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वर्क पाथ पर डिपेंड करता है बेटा। आगे। The force of a friction is non-conservative because the work done by the friction is not zero in a round trip. तो जो फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव है क्योंकि राउंड ट्रिप में उसका वर्क डन जीरो नहीं है। यस। अब मुझे ये पूरा पैराग्राफ मतलब स्टार्टिंग से कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कौन मुझे समरी बताएगा शॉर्ट में। अभी हम एक नया तरीका स्टार्ट करेंगे, समरी मतलब कौन सा स्टूडेंट इसको पूरे पैराग्राफ को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेगा, हर एक पॉइंट को। हाथ ऊपर करो, बाकी हाथ नीचे ले लो। हम्म यस सर। बोल। सर पहले पैराग्राफ में उन्होंने फ्रिक्शन का एग्जांपल लिया है। अ, हम्म उन्होंने बोला है कि फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है अपन जिसमें फोर्स लगाते हैं। तो हम्म हमेशा फ्रिक्शन नेगेटिव नेगेटिव होता है, और जब हम उसको ऐड करते हैं तो उसका नेट वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव ही आता है। हम्म और सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने जस्ट उसका एग्जांपल दिया है, रियल लाइफ एग्जांपल। ओके। यस सर। और फिर उन्होंने थर्ड पैराग्राफ में बताया है कि
फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बहुत बढ़िया। और कोई है जो इस पैराग्राफ का मीनिंग समझा पाएगा अपने ओन वर्ड्स में, खुद के शब्दों में? अच्छे से चैट मत करो, मैं मोबाइल देख नहीं रहा हूँ। मोबाइल सुबह सुबह मत देखो, नहीं तो सुबह सुबह ही आंखें दर्द करेगी। मोबाइल रख दो बाजू में। तेजस्विनी बोल बेटा। हेलो सर। हम्म सबसे पहले हमने वो सबसे पहले फ्रिक्शन का देखा, तो फ्रिक्शन ऑलवेज नेगेटिव लेने का मतलब, बिकॉज वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो उसका फॉर्मूला ऑलवेज -μ mgl लेने का, हम्म और उसका टोटल वर्क डन -2u mgl लेने का। देन सेकेंड पैराग्राफ में हमने देखा कि उसका एग्जाम्पल देखा फ्रिक्शन का ही, एंड थर्ड में कंजर्वेटिव फोर्स देखा, जो कि होता है अगर हम वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग राउंड ट्रिप होता है, तो उसका मतलब वो फोर्स अगर 0 आया तो उसे कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, और अगर वो 0 नहीं आया तो उसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। आणि हम्म एंड देन वो वर्क डन अगर ओनली इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड होगा, तो उसी को कंजर्वेटिव फोर्स बोलने का, और अदरवाइज वो ऑल पाथ उसने कैसे कर किया है वो नहीं लेने का, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में। हम्म ओके, बहुत बढ़िया। चल अगली बार ना पैराग्राफ को 2 या 3 लाइन में ही एक्सप्लेन करने का है, एकदम शॉर्ट वर्ड्स में। चलो आगे का कौन पढ़ना चाहेगा? पॉइंट नंबर 8.7 वुड लाइक टू रीड। हम्म राजनंदिनी पढ़ो बेटा, फिर से हाथ ऊपर करो। पढ़ो बेटा, पॉइंट नंबर 8.7। Definition of potential energy and conservation of mechanical energy. We define the change in potential energy of a system corresponding to a conservative internal force as UF minus UI is equals to minus of work done is equals to minus of integration of vector F dot vector dr from initial to final. ओके, इसका मीनिंग एक्सप्लेन करो बेटा राजनंदिनी। सर, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स ऐसा कंसिडर करते हैं, और उसका जो चेंज होता है दैट इज यू एफ माइनस यू आई, वो इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर से डिनोट करते हैं। ओके, वो वर्क डन के अपोजिट होता है। ऐसा क्यों होगा? सर क्योंकि वो पहली लाइन देखो सब जन। The change in the potential energy of a system corresponding to a conservative internal force as पोटेंशियल एनर्जी का जो भी चेंज होगा वो वर्क डन के नेगेटिव होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर हमने पॉजिटिव वर्क किया, मतलब हमने नहीं, सिस्टम ने, तो उसकी एनर्जी कम होने वाली है। और अगर सिस्टम के ऊपर किसी ने वर्क किया, मतलब सिस्टम ने नेगेटिव वर्क किया, तो उसकी एनर्जी बढ़ने वाली है। क्योंकि ऑब्वियस है, अगर तुम कंजर्वेटिव फोर्स हो और तुमने वर्क किया तो तुम्हारी एनर्जी कम होने वाली है। और अगर तुम पे किसी ने वर्क किया, मतलब तुम्हारा वर्क डन नेगेटिव है और सामने वाले का वर्क डन पॉजिटिव, तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ने वाली है। तो ये डेफिनेशन है। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो कि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस।
और वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी आर, उसलिए वो माइनस एफ डॉट डी आर आया इंटीग्रेशन में। आगे बेटा। where W is the work done by the internal force on the system as the system passes from the initial configuration I to the final configuration F. हाँ, तो ये जो W है ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस है और इंटरनल फोर्स ही कंजर्वेटिव होते हैं। आगे। We don't or can't define the potential energy corresponding to a non-conservative internal force. अगर इंटरनल फोर्स ये नॉन कंजर्वेटिव है तो हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते। Suppose only the conservative internal forces operate between the parts of the system and the potential energy U is defined corresponding to these forces. There are either no external forces or the work done by them is zero. Then we have UF minus UI is equals to minus of work done is equals to minus of KF minus KI or फिर से इसका UF मीनिंग एक्सप्लेन करो। इसका मीनिंग एक्सप्लेन करो बेटा। सर अगर कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस दो पार्ट सिस्टम के दो पार्ट्स पे ऑपरेट किए तो पोटेंशियल एनर्जी फोर्सेस को करस्पॉन्ड उसके फोर्सेस को करस्पॉन्ड की जाती है। वहाँ पे आइदर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होते और या तो फिर उसका वर्क डन जीरो हो जाता है। नहीं बेटा, और कोई एक्सप्लेन करेगा ये सेकेंड लाइन को? फिजिक्स में मुझे लगता है इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि आप उसका रियल मीनिंग नहीं समझ रहे हो। दूसरी लाइन ऐसी है, there are either no external forces or the work done by the system by them is zero. Suppose only conservative internal forces are operating on the system. ये देखो, मान लो अगर सिस्टम पर सिर्फ कंजर्वेटिव ही कंसीडर करते हैं, मतलब इसका मतलब एक्सटर्नल हम नहीं कंसीडर कर रहे या फिर एक्सटर्नल का वर्क डन जीरो कंसीडर कर रहे हैं। दो केसेस है। जब हम सिर्फ कंजर्वेटिव की बात करते हैं तो हम नॉन कंजर्वेटिव को एलिमिनेट कर देंगे, उनको नहीं लेंगे। एक तो वो नहीं है या फिर अगर वो है तो उनका वर्क डन जीरो होगा। ऐसी सिचुएशन हम अज्यूम कर रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है स्प्रिंग हो सकती है और एक ब्लॉक हो सकता है, उसको हमने स्मूथ सरफेस पर रखा है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ये एग्जांपल ले सकते हैं या फिर पेंडुलम का एग्जांपल ले सकते हैं। पेंडुलम को लटकाया है और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ले लिया अपन ने। ऐसे आगे बेटा। The sum of the kinetic energy and the potential energy is called the total mechanical energy. We see from the equation that the total mechanical energy of a system remains constant if the internal forces are conservative and the external forces do no work. मतलब कि सर अगर हमने नहीं, पहले तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को मैकेनिकल एनर्जी ऐसा कहते हैं। और अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये कांस्टेंट रही, देन द इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, तो वो फोर्सेस कंजर्वेटिव रहते हैं एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस कोई कुछ भी वर्क नहीं करते सिस्टम में। वेरी गुड, इतना सब लोग अंडरलाइन कर लो। This is called the principle of conservation of energy.
The total mechanical energy K plus U is not constant if the non-conservative forces such as the friction act between the parts of the system. मतलब मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये इफ इट इज नॉट कांस्टेंट मतलब कि ये नॉन कंजर्वेशन फोर्सेस है, जैसे कि फ्रिक्शन। नॉन कंजर्वेशन फोर्सेस फ्रिक्शन में मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। बराबर, कंजर्व नहीं होती। हाँ, कंजर्व आगे। नहीं होती। We can't apply the principle of conservation of energy in the presence of non-conservative forces. मतलब कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केसेस में नहीं लगा सकते, वो एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल, इसके बारे में सोचो। सर क्योंकि वहां पे लॉस हो रहा है एनर्जी का। सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है। ये सर। आगे। The work energy theorem is still valid even in the presence of non-conservative forces. मतलब कि वर्क और एनर्जी थ्योरम है वो स्टिल वैलिड रहता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में भी। मतलब एक्सप्लेन करो इसको। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? अपना वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है हमेशा वाला? The work done by all the forces is equal to change in the kinetic energy. Yes sir, change in its kinetic energy. वो एप्लीकेबल सब तरफ है, उसमें एक्सेप्शन नहीं है। क्यों एक्सेप्शन नहीं है? बिकॉज उसमें पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी यूज नहीं है, वहां सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। इसलिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए कंजर्वेटिव फोर्स होना जरूरी है। आगे। Note that only a change in potential energy is defined above. We are free to choose the zero potential energy in any configuration, just as we are free to choose the origin in space anywhere we like. मतलब सर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कहीं से भी एक इनिशियल पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि हम स्पेस में ओरिजिन ले सकते हैं। किसी भी पॉइंट को हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हैं और उसके हिसाब से बाकी पॉइंट की एनर्जी डिसाइड कर सकते हैं। आगे। If non-conservative internal forces operate within the system or external forces do work on the system, the mechanical energy changes as the configuration changes. मतलब नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस ये सिस्टम में ऑपरेट किए जाते हैं और जो एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क डन करते हैं सिस्टम पे, उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। मैकेनिकल एनर्जी के चेंज के वजह से कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो जाता है। ठीक, आगे। According to the work energy theorem, the work done by all the forces equals the change in the kinetic energy. Thus, the WC plus WNC plus work done by external. Work done by conservative plus work done by non-conservative plus work done by external is equal to final kinetic minus initial kinetic. Where the three terms on the left denote the work done by the conservative internal forces, non-conservative internal forces, and the external forces. मतलब सारे वर्क का एडिशन KF minus KI होगा। आगे।
as the work done by the conservative forces is equals to minus of final potential energy minus initial potential energy. We get the work done by non-conservative forces plus work done by external forces is equals to final kinetic energy plus final potential energy minus initial kinetic energy plus initial potential energy, हाँ, which ये is क्या equal किया है उन्होंने, ऊपर के इक्वेशन में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव की वैल्यू पुट कर दी है और उसको राइट साइड में लेके गए और उसको रीअरेंज किया है. which is equals to the final energy minus initial energy. फाइनल मैकेनिकल माइनस इनिशियल मैकेनिकल. आगे. Where the energy is equals to kinetic energy plus potential energy is the total mechanical energy. आगे. If the internal forces are conservative, but the external forces also act on the system and they do work, then work done by the non-conservative forces is equals to 0, and from the work done by external forces is equals to final mechanical energy minus initial mechanical energy. मतलब क्या, इस लाइन का मीनिंग क्या है? सर अगर इंटरनल फोर्सेस ये कंजर्वेटिव है और फिर भी एक्सटर्नल वर्क एक्ट हो रहा है सिस्टम पे, देन वर्क डन हमेशा 0 आता है. अगर अंदर के कंजर्वेटिव है और बाहर वाला एक्ट हो रहे हैं और बाहर वाला भी वर्क कर रहा है, तो यहाँ इस केस में इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन हम 0 कंसीडर करके वो इक्वेशन लिख सकते हैं. इक्वेशन 8.7 में क्या किया है, WNC को 0 ले लिया उन्होंने, तो सिर्फ बचता है W एक्सटर्नल. Yes. आगे. The work done by the external forces equals the change in the mechanical energy of the system. अगर इंटरनल कंजर्वेटिव 0 है उसको अंडरलाइन करो. अगर इंटरनल कंजर्वेटिव 0 है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल को हम डायरेक्ट चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी ले सकते हैं. मतलब बाहर से जो वर्क हो रहा है वो डायरेक्ट सिस्टम के चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. आगे. Let us summarize the concepts developed so far in this chapter. Work done on a particle is equal to the change in its kinetic energy. बरोबर. पुढे. Work done on a system by all the external and the internal forces is equal to the change in its kinetic energy. A force is called conservative if the work done by it during a round trip of a system is always 0. The force of gravitation, Coulomb force, force by a spring, etc. are conservative. If the work done by it during a round trip is not 0, the force is non-conservative. Friction is an example of the non-conservative force. The change in the potential energy of a system corresponding to conservative internal forces is equal to negative of the work done by these forces. If no external forces act or the work done by them is 0 and the internal forces are conservative, the mechanical energy of the system remains constant. This is known as the principle of conservation of mechanical energy. पांचवा पॉइंट एक्सप्लेन करो. अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज 0 है और इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव है, then the mechanical energy is always constant. Then mechanical energy is always remains constant. और यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं और इससे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं. बराबर. आगे. If some of the internal forces are non-conservative, the mechanical energy of the system is not constant. मतलब यानी कि इंटरनल फोर्सेस ये नॉन कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट. एग्जांपल दे सकते हो.
इंटरनल फोर्सेस तो में से कौन कौन मुझे एग्जांपल दे सकता है? इंटरनल फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं क्या, और है तो कहां पर? Varath, internal forces do not produce accelerations, no work done. नहीं बेटा, मैं पूछ रहा हूँ इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव कहाँ कहाँ पर, नॉन कंजर्वेटिव कहाँ कहाँ पर होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नहीं बेटा। चलो मैं बोलता हूँ, मान लो आपके पास एक, सुनो ना, मेरे पास, आपके पास एक बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो कभी कभी ना वो टकराने की वजह से उनमें फ्रिक्शन भी होता है, वो हीट में एनर्जी निकल जाती है। या फिर मान लो आपके पास एक टेबल है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है और ब्लॉक को स्प्रिंग लगाई है, तो ये पूरा सिस्टम है। बट अगर फ्रिक्शन भी है तो वो फ्रिक्शन उस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, जो कि नॉन कंजर्वेटिव है। ऐसी बात है ये। चलो आगे बढ़ो, लास्ट पॉइंट। If the internal forces are conservative, the work done by the external forces is equal to the change in mechanical energy. मतलब Internal forces are अगर conservative है, then work done by the external forces ये हमेशा change in mechanical energy होता है. नहीं, फिर से इंटरनल फोर्सेस अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस है, देन जो एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क डन करते हैं वो हमेशा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है. अगर इंटरनल कंजर्वेटिव है तो एक्सटर्नल का वर्क डन मैकेनिकल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। ठीक, चलो तो आज हमने सबने पॉइंट नंबर 8.6 और 8.7 पेज नंबर 121 और 122 पढ़ लिया है 123 तक। कल हम 123 के आगे पॉइंट नंबर 8.8 पढ़ के ये टॉपिक खत्म होगा क्या कल? हाँ, कल खत्म करेंगे। टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द रीडिंग ऑफ टॉपिक वर्क एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, पावर नहीं है इसमें, सिर्फ वर्क एनर्जी। कल खत्म कर लेंगे, कल नहीं तो आज शाम को, रात को मैसेज डाल दूंगा अगर मैं रात को पढ़ाई कर रही हूँ। तो फिर ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चंस करेंगे इसमें से पॉसिबल हुआ तो, और उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा एंड दैट इज, मुझे लगता है इसके बाद हमने लेना चाहिए सर्कुलर मोशन। हमने जो स्किप किया था चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे हम। इंटरनल फोर्स मतलब क्या होता है? इंटरनल फोर्स मतलब सिस्टम के अंदर का फोर्स बेटा। जैसे दो ब्लॉक है, उसके बीच में स्प्रिंग लगाई, तो अगर हमने उसको सिस्टम कंसिडर किया तो उनके बीच में का, ठीक है। देखते हैं, आज मैं शायद सर्कुलर मोशन स्टार्ट करूंगा क्लास में, ठीक है। चलो बाकी सारी बातें उधर करते हैं, चलो।